welcome to Antara Squad. Welcome to the second Converse with Antara, that is part 2. मैंने last हफ्ते आप लोगों के साथ एक conversation round किया था and this is the second part of this month. And as I have promised you all that I'll come up with such a Converse with Antara series. And yes, here I am with another part. सो लास्ट हफ्ते मैंने अपने जो भी मेरी टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती हूँ वहाँ पे मैंने एक पोलिंग डाला था वेर आई हैड आस्क्ड दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MA एग्जाम्स बिकॉज आई नो कि मेरे ग्रुप में या फिर मेरे क्लासेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. So today's video is solely dedicated to all the masters के preparation करने वाले बच्चे because in the Google form there were many questions from students who are trying to appear for masters exams. So I'm going to try to cover all your queries. At least I'll try to cover some of them जो मुझे बहुत ही important लग रहे हैं फिलहाल address करने वाले. And since every now and then there are students asking me about MA exams, so here it is. Now, first of all, I want to categorize my today's video into two parts. Number one are those students जो already sociology से हैं, जिन्होंने at least school में या फिर bachelors में sociology पढ़ी हुई है, if not probably majors या फिर थोड़ा बहुत आपके पास है idea. दूसरे कैटेगरी जो कि मेजॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं जो हर टाइम मुझे मैसेज करते हैं आर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी. एंड काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं है, लाइक दे आर नॉट इवन फ्रॉम सोशल साइंसेज, दे आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दीज काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स. सो देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन दैट कम्स अप इन दीज स्टूडेंट्स माइंड कि मटीरियल्स तो है, there are so much free materials available, लेकिन हम कौन से चीजें पढ़े और कहाँ से पढ़े. So this video is all about addressing those queries and in case अगर आपको लगे इस वीडियो में आपको कोई भी हेल्प नहीं मिली है, try to comment down. If it's a specific question, I'll definitely try to answer it. Now, first of all, I want to discuss about those students जो है sociology के. Now, guys, you already are from sociology. आपकी जो basics है, जैसे कि structure functionalism क्या है, conflict theory क्या है, ये सारी चीजें already clear हैं. So, you don't really have to know these things again या फिर आपको वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. What you people now have to do is to go a little advanced stage. जैसे कि आप लोगों को सारे basics तो पता है, लेकिन problem आ जाती है जब आप लोग MCQs solve करते हैं. There are certain tricks and tips which I have shared with my students quite a couple of times. जैसे कि कुछ हमारे keyword formula होती है. There are certain thinkers, let's say Durkheim, Marx, Weber, जिनके specific कुछ हमारे keywords होते हैं. And not necessary that all these keywords always will guide you to the answer because काफी time जैसे हमारा keyword है integration. Now integration can be a keyword for Parsons. It can be a keyword for Durkheim as well. So you will have to very well then read the question properly. So this only applies to those students जो है active and those who are well aware of what is there in sociology. All you need is a proper guidance and the most important part is sticking to the syllabus. काफी time students इधर उधर भटकते रहते हैं. आप लोगों को पता है कि question answers अभी MCQ pattern हो गई है. That means you anyway have to read the net portion because जो भी questions आती हैं वो net के structure के हिसाब से आती है. So you know that. However, you should not be just roaming around because आपको पता है कि अगर ये हमारे सिलेबस में है तो हम यही पढ़ेंगे because UGC नेट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, way more vast than any master's syllabus of any central university. So you people have to know your target और उसी के हिसाब से आप लोग टॉपिक उठा के पढ़ेंगे. Now, there is one important thing that I want to tell you all that काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये थिंकर नहीं है हमारे सिलेबस में, जैसे कि Malinowski. Bronislaw Malinowski is not there in the JNU master's syllabus. However, you people have to read his bits and pieces in other subjects. जैसे कि अगर आप research methodology पढ़ रहे हो तो ethnography में उनका क्या contribution था, उन्होंने क्या क्या definitions दी है marriage की, culture की, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना होगा. So you don't really have to read Malinowski in detail, but at least the basics of what these major thinkers of sociology and anthropology have talked about.
Now I will come to the non-sociology background students. Specifically ये सारे बच्चे जो geography, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट से हैं जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है सोशियोलॉजी से. सो दिस टिप इज फॉर ऑल those students, and I want to tell you one thing. The very first thing is that कि सोशियोलॉजी एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है. अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारी किताबें पढ़ लूंगा, आई ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सोशियोलॉजी इज सच अ सब्जेक्ट जहां पे आपको कहानी की तरह चीजों को समझनी होगी. अगर आप एक स्टोरी की तरह नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप चाहे कुछ भी बुक फॉलो कर रहे हो, डर्कहाइम, मार्क्स, वेबर को समझने में आप चीजें या टर्म्स आप नहीं याद रख पाएंगे. And this is a problem that I have seen with my net students as well. Basics ही clear नहीं है. Conceptual अगर आप tough questions को answer करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका basics ही clear नहीं है, then it's going to be a huge problem. So what you people can start doing is that मैंने couple of times मेरे students को ये चीज बताई है कि जैसे हमें पता है कि thinkers के लिए एक बहुत अच्छी बुक है दैट इज जॉर्ज रिट्जर. लेकिन जॉर्ज रिट्जर एक डिफिकल्ट लेवल पे लिखी गई है. अगर आपको कोई बेसिक्स ही नहीं आता तो फिर आप जॉर्ज रिट्जर से शुरू नहीं कर सकते. कंसिडरिंग मी, मैं एक ऐसे इंसान हूं जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ में आता है, और अगर मैं बिगिनिंग में ही एक बहुत ही डिफिकल्ट बुक उठा दूं मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा. मे बी मोमेंटरीली मैं चीजें याद कर पाऊंगी, बट द टाइम आई करेक्ट या फिर आई एम इन द एग्जाम हॉल टेकिंग द क्वेश्चंस, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल. मैं ये आप लोगों से फिर से फोर्स करना चाहती हूँ, बिकॉज सी गाइज, दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आप सिंसियर है, अगर आपको पता है कि आप में वो कैलिबर है एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो यू शुड वर्क इन द राइट डायरेक्शन. एंड द राइट डायरेक्शन स्टार्ट्स विद एनसीईआरटी. एंड एनसीईआरटी आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल जो बिल्कुल कच्चे हैं, जिनको कुछ नहीं पता सोशियोलॉजी के बारे में. व्हाट इज सोशियोलॉजी, कौन है जिन्होंने ये डिसिप्लिन बनाया है, क्या है ये डिसिप्लिन, लोग क्या पढ़ते हैं इसमें. यू पीपल हैव टू स्टार्ट विद 11th and 12th एनसीईआरटी सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक. नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक कंप्लीटली लाइन बाय लाइन, लेकिन एक ओवरऑल रीडिंग करो. एंड सोशियोलॉजी इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट. प्लेन इंग्लिश में होती है. अगर आप समझ पा रहे हो उस चीज को, बस प्लेन आपको ऊपर ऊपर देखना है कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होती है सोशियोलॉजी में. उसके बाद you have to move to a little difficult part, and I feel the easy and most available authentic source that you will find on internet for free is IGNOU. And I have told this to all my students, even net. I think I have told this many times, more than I think, I don't know how many times, but IGNOU पे बहुत जोर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि IGNOU में जो भी चीजें होती है वो बहुत ही सिंपल भाषा में होती है. सेकेंडली, आपको जो भी चीजें चाहिए आप करेक्ट टारगेट में उसे देख सकते हो. And yes, so this is one part, and after that you people can move to a little difficult type of books like Ritzer, Kenneth Morrison, etc. So this is the starting bit that you people have to do. After that you have to move to practicing questions. Mock test practice questions बहुत important है. चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, आप कोई गाइड बुक से कर रहे हो या फिर आप नेट के PYQ सॉल्व कर रहे हो, आपको देखना होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है क्या इट्स गेटिंग बेटर और नॉट. इफ इट्स नॉट गेटिंग बेटर, डोंट वरी. अगर आपको पहले 50% मार्क्स आ रही है, 40% मार्क्स आ रही है, इट विल इंक्रीज आफ्टर अ वाइल. बट लेकिन अगर आप 3-4 महीने हो गए हैं आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप में प्रॉब्लम है, आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं. सो क्रिबिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. काफी टाइम मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम बहुत पढ़ लिया लेकिन एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है. दैट इज नॉट दैट यू हैव टू टेल मी, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि अभी मेरी बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं हो रही है. कहाँ पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? आर दे फैक्चुअल क्वेश्चन? जैसे फैक्चुअल हमारे स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन होते हैं, इंडिया में माइग्रेशन क्यों होता है, या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है. सो अनटिल एंड अनलेस यू आइडेंटिफाई योर स्पॉट वेर यू आर गोइंग द मोस्ट बैड परफॉर्मेंस, तब तक आपको नहीं पता चलेगा हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन. सो दिस इज what guidance that I want to give you all, and I have given you the materials already. I have already made 2 videos specifically for the MA students. आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. इसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती, you can tell me, I can guide you better. And उसके अलावा एक चीज मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग गाइड बुक्स फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, यू ऑलवेज हैव टू क्रॉस चेक द आंसर, बिकॉज
because most of the times answers are wrong. तो अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़े हुए हो, try and clarify those answers with them, because अगर आप बहुत सारे sources यूज कर रहे हो, बहुत सारे mixed आपकी वो हो जाएगी, तो आपका जो preparation है it is not going to go good. You have to be very focused, अपने sources limited रखिए और अपने आप पे काम करें. Don't be bothered कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, how are other people preparing, etc. Now let me talk about the other set of exams, for example Delhi University, जहाँ पे questions इस तरीके के नहीं आते हैं. Questions हमारे reading comprehension से आती है. That means you have to work on your reading comprehension part. आपको वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं पैसेज पढ़ के आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं. ओके, एंड फॉर दिस यू नीड बेसिक्स. अगर आप सोशियोलॉजी के बेसिक्स ही नहीं समझते तो फिर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो डोंट टेक इट लाइटली गाइज. आपको पढ़ना होगा बेसिक सोशियोलॉजी, लेकिन उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, सिंस यू पीपल आर लकी, आप लोगों को 3 साल के PYQs मिले हैं DSC के. आप लोग बैठ के वो 3 सालों के पेपर्स को एक बार सॉल्व करके देखो. एंड दोज आर द ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी कि उनके आंसर्स कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहे हैं, बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट आंसर की that they have provided. So that means they feel these answers are correct. So that is something that I want to say. And lastly, to all my students who are preparing for JNU's development in labor studies, guys, जो recent years हैं हमने देखा है कि entrance के जो questions हैं have moved towards economics a little bit. वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा economics से questions पूछ रहे हैं, but that does not mean that they are not asking questions from sociology या फिर history etc. So economics के लिए I have already given you the book. If you follow that book, the basics of that book, it's going to help you. अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को लास्ट ईयर का देखिए ध्यान से, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल की डिफिकल्टी ये लोग पूछते हैं. एंड डोंट वरी गाइज, अगर वो पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा. सो डोंट बी इन दैट बबल दैट जस्ट मेरे लिए डिफिकल्ट है. Okay, and yes, and I really want to focus on those students who are preparing for JNU's Sociology MA, that competition is going to be very very high. So you have to reach that perfection level. आपकी एक गलती आपका सीट बर्बाद कर सकती है JNU में. You might skip that chance to attend JNU or any other university that you are fighting for, because competition बहुत high होते हैं इन universities के लिए. So don't be reluctant. जो भी मॉक टेस्ट आप कर रहे हो उन्हें इतने ध्यान से करो कि आपको बाद में ना लगे कि अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गया. यू शुड नॉट बी टेलिंग दैट रीजन टू यू. अगर कोई आंसर गलत हो रहा है तो फिर वो कॉन्शियसली आप गलत करो कि ये मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ. एंड इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, क्योंकि हमारे सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं. तो इफ वी आर अलाइव टिल दैट टाइम, आई रियली थिंक यू शुड यूटिलाइज ऑल दिस टाइम एट योर होम working on these contents. And yes, so this is what I want to tell to all my MA preparation करने वाले students. And also about time management. Many students have asked me कि मैम लंबे टाइम तक हम बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं. लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ना होना ही नहीं है. You don't have to read for hours. वो जमाना गया जब स्टूडेंट्स एक बार बैठते थे तो 5-6 घंटा एक साथ पढ़ते थे. इट्स ओके. सबके पढ़ने की जो स्पैन ऑफ अटेंशन होती है वो कम होती है. इट्स नॉट सेम फॉर ऑल. आप आधा घंटा पढ़ो एक साथ बैठ के, लेकिन वो जो आधा घंटा आप पढ़ोगे दैट शुड बी वेरी वेरी वेल फोकस्ड अपॉन. दैट शुड नॉट बी कि मैं 5 मिनट पढ़ रही हूँ एंड देन 5 मिनट्स आई एम वॉचिंग TV और सोशल मीडिया. ये सारी चीजें आप लोग मत करो. यू कैन स्विच ऑन द एयरप्लेन मोड ऑन योर फोन्स एंड देन डू योर रीडिंग. एंड yes, so that's what I want to say कि आप लोग अपना जो फोकस है वो लूज मत करो. एंड आई थिंक that's a really good discussion things that you people do on my Telegram. So in case you people have not yet followed, do follow my Telegram and utilize it completely, because there are ample amount of mock tests that I have already done with you all. There are ample amount of free materials which are there, which I had made the notes myself, so you can utilize those. And इसके अलावा I'm always there to help you out. But in case you people have any more specific queries, आप मुझे ज़रूर comments में बता सकते हो. And if you're asking me the doubts on Telegram, please don't forget to tag me, because it's not humanly possible for me to read through 500 messages every day. So yes, so thank you so much. This is what I really felt important
for all the MA aspirants. In case you people have more doubt, you can ask me, and in the coming week I'll come up with another video specifically for students who are preparing for PhD, because काफ़ी students ने मुझे पूछा कि proposal कैसे लिखें, publication matter करती है कि नहीं. So proposal, publication, PhD, ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए I'll bring a video on the coming week. That is the third Converse with Antara session. So thank you so much for all your patience. Bye-bye.